फिर YouTube पे 200 से ऊपर वीडियोस पड़े हुए हैं ना, अपन किसी में भी देख सकते हैं। बाकी जो सीनियर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देख सकते हैं, नहीं है ना? What is your name? Shikha Chokshi. I would like to invite Shikha Chokshi to deliver her second speech. Put your hands together. Good morning, guys. Good morning. How are you? I am fine, thank you. I am also fine, thank you. My name is Shikha Chokse. This is my second speech before you. I get up 6 o'clock, then I get fresh, then I have wash. Later on, I have tea with biscuits. Thereafter, thereafter I get ready for coaching and come by 9 o'clock. Then I take breakfast. Later on, I help my mom cleaning the home. Then I get ready for college. Thereafter, I attend my all lecture. Thereafter, I attend all lectures. Then I lunch 1 o'clock. Thereafter, I come home. Then I go to tuitions. Thereafter, I come 8:30. Thereafter, I come home at 8:30. Then I take tea. Thereafter, I go my tuitions. Then I come in home. Then I lunch with my family. Meanwhile, watch TV. Thereafter, I check my phone. Then I go to bed at 10 o'clock. Thank you. इस बीच में तो मैं 2 बार लंच लिया बेटा। Okay. Now, who is ready to deliver speech? What's your name? My name is Next, I would like to invite Animesh Jain. Put your hands together. Good morning, everyone. Good morning. Myself, Animesh Jain, and I am standing before you to deliver my second speech, which is based on simple present tense. And my daily routine is I wake up at 6:15 in the morning. Then, after waking up, I sleep for 5 minutes more. Then I realize that I have to go to class also. Then I wear my slippers and then I goes and then I go to washroom to wash my face. Thereafter I
go down in my drawing room, and then thereafter I greet my parents good morning, and after that I get ready for coaching class, which starts from 7 o'clock in the morning, and then I drink, and then I have my milk in one gulp. Thereafter, I get ready and take my scooty key, and thereafter I drive here for coaching classes. Then I study in coaching classes. Thereafter, I come home from coaching classes at 9 o'clock. Then I take bath. Thereafter, I have my lunch, and later on I study for my CAT exam. Then some time left, so I read English newspaper and read novels. Thereafter, my college classes starts around 2 in the afternoon, and it goes till 5 in the evening. Then I give some rest to my eyes and ears by removing earphones and closing my eyes. Thereafter, at sharp 6 in the evening, I have my dinner, and thereafter I take a walk in the pond that is nearby my house, and then I come back home, and then I go study for my college studies and for CAT exam both. Then thereafter I meet my colony friend, which who lives nearby, and then I watch uh, Shark Tank India, which comes at 9 o'clock in the night, and then I watch WhatsApp and Insta if any message have come or not, and then I prepare my bed, and then I go to sleep. Thank you. Thank you, Animesh. Animesh, did you deliver first speech of intro? दोस्तों, इस स्पीच के दो उद्देश्य हैं। एक तो आपसे एक पर्टिकुलर चैप्टर पर अच्छी कमांड हासिल करवाना, और दूसरा है यहाँ इस जगह खड़े होकर हमें जो डर लगता है फेस करने में इतने लोगों को, या जो हेजिटेशन होता है, उसको एकदम जड़ से उखाड़ के फेंक। और मैं हमेशा इसको एक फिल्म के डायलॉग पर आधारित करके इस उदाहरण को देता हूँ। शोले फिल्म का डायलॉग है कि गब्बर सिंह के ताप से अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो है खुद गब्बर। यानी यहाँ पे खड़े होने के डर से अगर तुम्हें कोई बाहर निकाल सकता है तो वो है यहाँ पे बार बार खड़े होना। तो वहां कितने कंफर्टेबल रहते हो और यहाँ कितने अनकंफर्टेबल हो जाते हो, ये चीज दूर करना ही इसका एक उद्देश्य है। पता नहीं तुमने लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं, जब भी यहाँ पे कोई स्पीच देने के लिए आता है, मैं हल्की सी एक नजर उसकी बॉडी लैंग्वेज पर डालता हूँ। ग्रामेटिकल चीजें, ये आपके जो प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट, वो तो मैं नोट करता हूँ, वो मैं अभी बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज भी नोट करता हूँ, वो कितनी इम्प्रूव हो रही है। तो तुमने खुद भी शायद महसूस किया, हो सकता है तुमने ना किया हो क्योंकि तुम्हारा पूरा फोकस उस पर था जो तुमने तैयार किया है। तो
तुम्हारे पैर जो है, तुमने ध्यान दिया था, वो तुम्हारे थोड़े से हेजिटेशन को प्रदर्शित कर रहे थे। उसके साथ भी वही हो रहा था। उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए समझ में आता है कि हेजिटेशन है। लेकिन तुम्हारी प्रिपरेशन काफी अच्छी थी, क्योंकि तुमने बहुत सारी, जैसा कि हम बोलते हैं कि एक स्पीच में 30 से 40 क्रियाओं का आमतौर पर बच्चे प्रयोग करते हैं। ये मेरा अनुभव। अब कोई एक ही क्रिया को दो दो बार बोल रहा है तो वो बात अलग है। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, लेटर ऑन आई वेयर स्लीपर्स। अब ये क्रिया इसने भी नहीं यूज की होगी, इसने भी नहीं की होगी, इसने भी नहीं की। तो ये तुम्हारे अपने जहन की बात है, तुमने उस क्रिया को वहां पे फिट किया। कोई महत्वपूर्ण एक्शन नहीं है, लेकिन वहां मुंह से एक क्रिया निकली। अब तुम्हें मालूम है कि हम हिंदी मीडियम वाले इस क्रिया का गलत उच्चारण करते हैं। ये हम लिखवाते समय खास तौर पर हिंदी में साइड में लिखवा देते हैं। व्हाट इज द स्पेलिंग बच्चा? चलो सबसे पहले ये बताओ, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर पहनना? The verb for पहनना should be wear. And what should be the spelling? The spelling of wear should be W-E-A-R. हाँ, इसलिए हमने जानबूझ के नहीं बोली थी कि तुम्हारे मुंह से सुनना था। वे ठीक है। अब सब लोग ऑब्जेक्ट बदलेंगे, और इस बार हम एक चीज और तुम्हारी बताते हैं। एक शब्द है आफ्टर दैट, बिल्कुल सही है, इंग्लिश का शब्द है, ग्रामर का है, सब कुछ है, लेकिन ये थोड़े से स्तर को कम करता हुआ दिखता है। ये हिंदी माध्यम के बच्चों के द्वारा ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो हमने एक षड्यंत्र किया, इसको आपकी जुबान से हटाने के लिए हम इसका कभी प्रयोग ही नहीं करते, और उसकी जगह हम लेटर ऑन और देयर आफ्टर, इसको अल्टरनेटिव रखने का सुझाव देते हैं, और फिर एक और छोटा सा देन दे देते हैं। इसने दो बार कहीं कहीं मीनवाइल रखने की कोशिश की, लेकिन वो सही ढंग से रख नहीं पाई, बिकॉज़ शी वाज नॉट वेल प्रिपेयर्ड। तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो अगली स्पीच में तुम अपने आफ्टर दैट को फोकस करना कि वो आप मुंह से निकले ही नहीं। और ये चीज तुम खुद इंटरव्यूज वगैरह में नोटिस करना कि जो कोई पुराना बंदा है वो इसका ज्यादा प्रयोग करता हुआ पाया जाएगा, और कोई एकदम मॉडर्न है, चाहे हीरो हीरोइन हो, अभी के जो बच्चे आते हैं इंग्लिश मीडियम या जिनका एजुकेशन फॉरेन में हुआ है, वो बिल्कुल नहीं यूज करते, इसका प्रयोग नहीं करते, या एकदम से खट से बोलते लेटर ऑन या अब उनका एक्सेंट अलग है, बात अलग है, तो वो इसका प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ से एक एक सेंटेंस प्रयोग करवाते हैं क्वेश्चनिंग आंसरिंग के रूप में। आपको इसका प्रयोग करना है और ऑब्जेक्ट बदलना है, कोई भी वस्तु पहन लेना, लेकिन वेयर बोलना, वेयर, और ये यहाँ पे आर को थोड़ा सा दबाएगा, वेयर। अरे हमने वो उदाहरण दिया होगा, शायद तुम लेट आए थे, तुमने ध्यान नहीं दिया। जब हम ये वर्ड लिखवाते हैं तो हम साफ साफ एक थोड़ा सा खराब सा लगने वाला उदाहरण दे देते हैं, लेकिन दिमाग में बैठ जाए इसलिए वो उदाहरण देते हैं। वेयर एक अच्छा लगने वाला उदाहरण है, फुटवेयर, हमेशा ऐसे ही बोला जाता है, फुटवेयर। दूसरा है अंडरवेयर, वेयर, है ना। और तीसरा है, वो इससे रिलेटेड तो नहीं है लेकिन उसकी अलग थोड़ी बात है, वेयर हाउस होते हैं बड़े बड़े। तो ये याद रखने के लिए हम कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं, कनेक्ट हो जाए। हम वेयर हाउस नहीं बोलते, वेयर हाउस। और जबलपुर में एक बहुत पुरानी दुकान है जती टाकीज में, मैडम वेयर। तो हम यहाँ से क्वेश्चनिंग शुरू कर रहे हैं।
और जानबूझ के लेटर ऑन उसमें डाल दे रहे हैं। आप जवाब देते समय देर आफ्टर भी बोल सकते हैं, जो आपकी इच्छा। लेटर ऑन व्हाट डू यू वेयर, After I wear my jeans, उसके बाद आप क्या पहनते हैं? उसके बाद मैं jeans पहनता हूँ. Later on, what did you wear? सॉरी, कम अगेन प्लीज। Later on, what did you wear? उसने तो गलत कर दिया, Later on, I wear. सॉरी। चलो हम तुमसे पूछते हैं, लेटर ऑन व्हाट डू यू वेयर, Later on, I wear my boots. उसके बाद आप क्या पहनते हैं? उसके बाद मैं कपड़े पहनती हूँ. Later on, what do you wear? Later on, I wear my cap. उसके बाद आप क्या पहनते हैं? उसके बाद मैं अपनी cap पहनता हूँ. Thereafter, what do you wear? Later on, I wear my shoes. उसके बाद आप क्या पहनती हैं? उसके बाद मैं अपने shoes पहनती हूँ. Later on, what do you wear? Thereafter, I wear my socks. उसके बाद आप क्या पहनती हैं? उसके बाद मैं अपने socks पहनती हूँ. Thereafter, what do you wear? Later on, I wear my dress. उसके बाद आप क्या पहनती हैं? उसके बाद मैं अपनी dress पहनती हूँ. Thereafter, what do you wear? Thereafter, I did wear my Sorry. Thereafter, what do you wear? I wear my sweater. Sorry. Later on, I wear my sweater. उसके बाद आप क्या पहनती हैं? उसके बाद मैं अपनी sweater पहनती हूँ. Later on, what do you wear? Thereafter, I wear my gloves. उसके बाद आप उसके बाद मैं अपने gloves पहनता हूँ. Later, मैंने पहन लिए थे. later on, what do you wear? Thereafter, I wear my mask. उसके बाद आप क्या पहनते हैं? उसके बाद मैं मास्क पहनता हूँ. Thereafter, why did you wear? Sorry. एक बड़ा खूबसूरत शब्द यूज किया था अपने मन से, ये सामने लिखा हुआ है, क्या किस किस को समझ में आया? एक घूम. हाँ, अपन कभी कभी हिंदी में बोलते हैं, एक सांस लो। बेटा ये दवाई है, कड़वी है, एक सांस में पी लो, या एक घूंट. हालांकि सुबह जो गुनगुना पानी होता है, ल्यूकवार्म वाटर, कहते हैं कि वो धीरे धीरे पीना चाहिए, घुट घुट के आराम से पीना चाहिए, इन्हें गल्प नहीं पीना चाहिए. मैंने पिया था. हाँ ठीक है, सेंटेंस बनाने के लिए अगर तुमने इसका प्रयोग किया, कैसे ये दिमाग में आया इसको? अच्छा, उसको ऐसे कनेक्ट किया कि जल्दी रहती है, इसलिए मैं फटाफट दूध पीता हूँ, एक घुट में दूध पीता हूँ. ठीक है, ये शब्द रखना चाहते थे वास्तव में कि वो सिचुएशन में आ रहा था इसलिए रखा? सिचुएशन में भी आया था, फिर मैं ऐसा जब सोचा पहले गलत पढ़ा. अच्छा, कहीं गलत पढ़ा, उसको रखना है. जी एक्चुअली बच्चे तुम लोग, अब हम इसलिए रिव्यू तुरंत दे रहे हैं. अब इसमें देने के लिए काफी रिव्यू है इनके. रिव्यू का मतलब होता है बच्चों, प्लस भी बताओ आप और माइनस भी बताओ, उसको रिव्यू कहते हैं. अखबार में किसी पिक्चर के बारे में आता है, इसमें ये तो बड़ा अच्छा है लेकिन इसमें ये कमजोर है, तो ऐसा नहीं कि बुराई ही बुराई करते हैं. रिव्यू का मतलब है प्लस और माइनस दोनों बताते हैं. तो हमने बताया आफ्टर दैट माइनस में गया. अब हम बहुत सारी और चीजें बताने जा रहे हैं जो प्लस में है, जो अच्छी है. तो क्यों ना हम इसका एक प्रयोग खेल लें, है ना? इसमें ऑब्जेक्ट
जरूरी नहीं कि एकदम बदलना बच्चों, एक ऑब्जेक्ट आप रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ अच्छा ऑब्जेक्ट मिल जाए तो बदल दे। What do you take in a gulp? I take my medicines in a gulp. Yes. आप एक घूंट में क्या पी जाते हैं? मैं अपनी दवाइयाँ एक घूंट में पी जाती हूँ। What do you take in a gulp? चलो एक उत्तर मैं दे देता नहीं हूँ। सर, आ गया यार, उसका नाम भूल गया था। हम्म, समझे? What do you take in a gulp? I take Gurmel juice in a glass. आप एक घूंट में क्या पीते हैं? मैं एक दूध में गुरमेल का रस पीता हूँ। What do you take in a glass? I take milkshake in a gulp. आप एक दूध में क्या पीते हैं? मैं एक घूंट में What do you take in a gulp? I take honey in a gulp. आप एक घूंट में क्या पी लेते हैं? What do you take in a gulp? I take beer in a gulp. आप एक घूंट में क्या पी लेते हैं? मैं एक घूंट में beer पी लेती हूँ. हम भी यही रखने वाले थे। What do you take in a gulp? I take a Karela juice in a gulp. आप एक घूंट में क्या पी लेते हैं? मैं एक घूंट में करेला जूस पी लेता हूँ. बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट है। What do you take in a gulp? I take mango shake in a gulp. आप एक घूंट में क्या पी लेते हैं? मैं आम का रस एक घूंट पीता हूँ. What do you take in a gulp? I take aloe vera juice in a gulp. आप एक घूंट में क्या लेते हैं? मैं एक घूंट में aloe vera juice पीती हूँ. What do you take in a gulp? I take cough syrup in a gulp. आप एक घूंट में क्या पी लेते हैं? मैं कफ सिरप को एक घूंट में पी लेता हूँ। तुम्हारे ऑब्जेक्ट रखने के लिए करेले का जूस इतना कड़वा होता है कि वो एक घूंट में अगर नहीं पियोगे तो उल्टी आ जाएगी। उससे कड़वी होती है। गुरबेल पपीते के पत्ते का। पपीते के पत्ते का जूस, उसका अनुभव नहीं है, हालांकि अभी इन दिनों काफी प्रयोग हो रहा है। जिनके प्लेटलेट्स कम होते हैं अभी कोरोना के दौरान, उनको रामबाण औषधि के रूप में, हाँ नहीं सुना, हमारे ब्लड में कुछ प्लेटलेट्स नाम की एक चीज होती है। यही होगा सर। हाँ, हमारे एक मित्र को हुआ था तो, और मोहल्ले में भी जिसको हुआ, यहाँ पे कुछ पेड़ एक्स्ट्रा लगी हुई है तो उसके पत्ते रोज टूटते थे, समझ में आता था लोग तोड़ तोड़ के ले जा रहे हैं पीस के। हालांकि उसकी रेडीमेड मेडिसिन भी आ गई है बाजार में, अब आई है सर, इसी साल आई है। इससे पहले कोई पहले नहीं आई थी। लेकिन जितना ताजा जूस काम करता है अपनी मेडिसिन उतनी मेडिसिन जाहिर सी बात है। So Animesh used this word very nicely and beautifully. At the starting, Animesh said, after waking up. हमारी पूरी कोशिश है कि धीरे धीरे तुम्हारी जुबान पे, अच्छा नियम बताओ, आफ्टर वेकिंग अप क्यों बोलना पड़ रहा है? प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, और अगर वर्ब आ रही है तो उसको नाउन बनाना पड़ता है। कैसे? आईएनजी लगा के उसको नाउन बना देते हैं। तो आफ्टर वेकिंग अप आई ब्ला ब्ला ब्ला, उठने के बाद में ये करता हूँ। अच्छा सेंटेंस था। एक जगह बड़ी खूबसूरती से तुमने हैव टू का प्रयोग किया, ही यूज्ड हैव टू ब्यूटीफुली। क्या सेंटेंस था याद? चलो रिकॉर्ड है वो।
वहां इसका अर्थ ये निकल रहा था। अब हमारे पास इतनी जगह नहीं होती बच्चों की पूरा पूरा सेंटेंस लिख पाए ना, उतना जल्दी जल्दी हम लिख सकते, तो पॉइंट्स लिख लेते हैं। हमने हैव टू लिख लिया कि तुमने एक जगह हैव टू यूज किया, इसमें हम रिकॉर्डिंग में देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो शायद तुमने ऐसा कुछ बोला था, आई टेक मिल्क इन ए गर्ल बिकॉज आई हैव टू गो टू कोचिंग। अब यहाँ इसका अर्थ हो रहा है क्योंकि मुझे कोचिंग जाना पड़ता है अर्थ होगा बच्चों से। अभी हम सबसे एक एक सेंटेंस बुलवा देंगे तो ये बनता जाएगा। आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह सुबह उठना पड़ता है। वर्ब आप चेंज करें। और ऐसा कार्य रखें जो इच्छा तो नहीं होती है लेकिन करना पड़ता है। I have to wash utensils. मुझे बर्तन धोने पड़ते हैं। I have to wash utensils, मुझे बर्तन धोने पड़ते हैं। I have shower in the morning. So have shower. बड़ा खूबसूरत सेंटेंस लगता है ये बोलते समय, या कहीं आ जाए तो अच्छा लगता है। I have to have shower. I have to have shower early in the morning. मुझे सुबह सुबह नहाना पड़ता है। I have to put the gate in the morning. मुझे सुबह सुबह गेट खोलना पड़ता है। वर्ब क्या रखिए बेटा? गेट वर्ब नहीं, गेट के पहले इज नॉट करेक्ट। खोलने के लिए जो वर्ब है बहुत कॉमन है, किसी भी दरवाजे पे मिल जाती है, किसी भी शॉप में जाओगे, शोरूम में जाती है, और इस क्लास में भी है, बस तुमने देखी नहीं, रेड कलर से कहीं पे एक लिखा हुआ है। ये नहीं, ये वाली नहीं। I have to open the door in early morning. मुझे सुबह सुबह गेट खोलना। अननेसेसरी प्रिपोजिशन सुन लो। चलो नेक्स्ट। I have to watch my mom's serial. मुझे मेरी serial देखनी पड़ती। करेक्ट। I have to drive early in the morning. मुझे सुबह सुबह गाड़ी चलाना। ड्राइव से याद आया, अनिमेश तुमने भी ड्राइव का यूज किया, तो अगर हमने नहीं लिखवाया तो दोनों वर्ब लिखवा दे अंतर जानने के लिए। आगे हम समझने को लिखवाते हैं। Have you written this? Yes, sir. Should I erase? Yes, sir. Right or right? ये ब्रैकेट में 4 और 2 समझ गए बच्चे? Yes, sir. क्या? चलाना ड्राइव 4 व्हीलर और राइड 2 व्हीलर। Yes. अब उत्तर देना। What should be the verb for चलाना? चलाना should be right. What should be the second form of drive? The second form of drive should be drive. What should be the second form of drive? The second form of drive should be drove. And what should be the third form of drive? The third form of drive should be drive. What should be the third form of drive? The third form of drive should be driven. Driven. What should be the verb for chalana? The verb for chalana should be ride. Right. The verb for chalana should be right.
two-wheeler. What should be the second form of ride? The second form of ride is इस रोड में और वो जो सड़क वाली रोड है उसके स्पेलिंग में अंतर है, ROAD है। एक बार फिर से, what should be the second form of ride? the second form of ride should be road. Thank you. What should be the third form of ride? The third form of ride should be road. The third form of ride is ridden. अब मजेदार बात देखो बच्चों कि वास्तव में राइड क्रिया का प्रयोग प्राचीन काल में घुड़सवारी के लिए किया जाता था, फिर धीरे धीरे प्रचलन में उसको टू व्हीलर के लिए, ये हो गया राइड और ये हो गया ड्राइव। वैसे तो एक्शन से भी हम समझ सकते हैं ड्राइव एंड राइड। तो व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर घुड़सवारी करना? The verb for घुड़सवारी करना लेकिन यहाँ ये जो राइड है ये सकर्मक क्रिया है बच्चे, ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, अर्थात इसके साथ एक कर्म रखना जरूरी होगा जिससे सेंटेंस पूरा लगे, नहीं तो अधूरा लगेगा। तो हम तुम लोगों से एक राउंड चलवा देते हैं। आप गाड़ी का नाम बदलते जाना, ठीक है? What do you ride? I have to ride. या बल्कि क्वेश्चन थोड़ा बदल देते हैं, What do you love to ride? I love to ride Royal Enfield. हाँ, आजकल के युवाओं को रॉयल एनफील्ड बहुत अच्छी लग रही है। आपको कौन सी गाड़ी चलाना अच्छा लगता है? मेरे को रॉयल एनफील्ड चलाना अच्छा लगता है। हंस के। What do you love to ride? I love to ride my scooty. आपको क्या चलाना अच्छा लगता है? मुझे मेरी स्कूटी चलाना है। What do you love to ride? I love to ride my cycle. क्या चलाना अच्छा लगता है? मुझे साइकिल चलाना अच्छा लगता है। साइकिल के लिए राइड का प्रयोग हो रहा है बच्चों। ध्यान से देखना, कोई भी साइकिल चलते हुए रास्ते में किसी न किसी साइकिल में तुम्हें, राइडर एक साइकिल पर हाँ वो भी है, और अगर ध्यान से देखोगे तो साइकिल के लिए भी बाइक का यूज, MTV mountain. हाँ बाइक का प्रयोग हो रहा है भाई। तो इसको ऐसे सीख सकते हैं आप। What do you love ride? Sorry. What do you love to ride? What do you love to ride? I love to ride my Activa. बच्चों दो क्रियाओं को जोड़ने का बड़ा आसान नियम है, टू से जोड़ दो, ठीक है? What do you love to ride? आपको क्या चलाना पसंद है? मुझे Activa चलाना पसंद है। What do you love to ride? I love to ride. Sorry. What do you love to ride? I love ride. Sorry. No problem, you can ask the next person. What do you love to ride? I love to ride Pulsar. आपको क्या चलाना पसंद है? What do you like? What do you love to ride? Ride. I love to ride my चंपा चंपा के लिए आपको क्या चलाना? मुझे भी चंपा चलाना पसंद है। लव टू मुझे लाइक भी तो आता है मतलब
बिल्कुल सही सवाल किया बच्चों। लाइक क्रिया का प्रयोग और लव क्रिया का प्रयोग में कोई अवेयर है बंदा? तुम्हारी अवेयरनेस काफी देखी हमने कल बाहर, उन चीजों के प्रति काफी अवेयर हो, तो बता सकती हो? किसी पर्सन की भी लाइफ और चलो चीज की कोई बात नहीं, है कुछ नहीं अंतर। ये फैशनेबल हो गया है, तुम सुनना टीवी में फैशनेबल है। आई लव टू हैव आइसक्रीम्स, आई लव टू हैव चॉकलेट्स, फैशन में है। इसको ऐसा भी समझ सकते हो बच्चों कि अगर ये बताने से पहले हम तुमसे बोलते एक वाक्य बनाओ, मुझे चॉकलेट्स बहुत 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 अच्छी लगती है, अपन ऐसा बोलते हैं ना कई बार बातचीत। तो अगर इस सेंटेंस को हम पुराने तरीके से बनाए तो ये ऐसा बनेगा, आई लाइक चॉकलेट्स वेरी 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 मच। अब उससे जो यहाँ बल्ब जलता है हिंदी मीडियम का, वो दूर करने के लिए थोड़ा सा टीवी पे गौर करो। वो ऐसा बोलते हैं, आई जस्ट लव चॉकलेट्स, बाय गॉड आई लव चॉकलेट्स, आई कांट लिव विदाउट चॉकलेट्स, खूब बोलते पाए जाते हैं। तो अच्छा, इस बात को एक पिक्चर में बहुत खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया, पी के नाम की फिल्म में। वो बोलता है कि भाई पृथ्वी पे अगर कोई बोले आई लव फिश या आई लव चिकन, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो व्यक्ति चिकन को बहुत प्यार करता, संभाल के रखता है। वो चिकन खाने के लिए बात कर रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि वो प्राणी प्रेमी है और जानवरों को प्यार करता है, ऐसा नहीं है। आई लव फिश या आई लव चिकन, वो उसको खाने की बात कर रहा है, ये बात उसमें बताई गई। और बहुत पुरानी पिक्चर, एकदम नई भी नहीं है, 2-4 साल तो हो गए। तो इसको बहुत अच्छे से लव क्रिया का प्रयोग, तुम लोग पता नहीं क्यों इतने सारे सीरीज सब चल रहे हैं मोबाइल पे, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो, एकदम लेटेस्ट चीजें मिलती हैं देखने को। कोई अंतर नहीं है, आप लाइक भी बोल सकते हो, लव भी बोल सकते हो, लेकिन लव में जैसे बहुत बहुत का जो जोर है, उसके लिए वेरी वेरी लगाने की जरूरत नहीं। आई लव आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम बहुत ही पसंद है, ये भाव है उसमें। ओके, What do you like to write? I love to ride R1 bike. आपको क्या चलाना अच्छा लगता है? मुझे R1 बाइक चलाना अच्छा लगता है। What do you love to ride? I love to ride X my axis. आपको क्या चलाना अच्छा लगता है? मुझे मेरी एक्सिस चलाना अच्छा है। What do you love to ride? यार आई लव टू राइड हार्ले डेविडसन। आपको क्या चलाना अच्छा लगता है? मुझे हार्ले डेविडसन चलाना बहुत अच्छा लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव। वंस आई rode it, one of my student took it here and I rode. चलो बच्चों, एक बार इसका भी प्रयोग कर ले। What would you love to drive? I love to, एक मिनट, What would you love to drive? I would love to drive Lamborghini. Yes. वो कौन सा गाना है, Lamborghini? Lamborghini चलाई जाए। हाँ। आप क्या चलाना पसंद करेंगे? देखो हिंदी में पसंद करना आ गया बच्चों, ठीक है? मैं Lamborghini चलाना। What would you love to drive? What would you love to drive? I would love to drive Volkswagen. बच्चों पता है इसका उच्चारण क्या है? ये दूसरे देश
का शब्द है, इसलिए इसमें लेटर कुछ और है लेकिन उच्चारण कुछ और पता है। फोक्स वैगन हिंदी में हम लिखते हैं। और स्पेलिंग कहाँ से शुरू होती है? डब्ल्यू से शुरू होती है हाँ, लेकिन बोलते फोक्स वैगन। डबल वी भी बोलते हैं इसको। रेंज रोवर जो है उसकी स्पेलिंग में कुछ ऐसे ही है। आठ से तो चालू होती है रोवर की स्पेलिंग कुछ और है। हाँ, ये अपन गूगल में कंफर्म कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ऐसी छोटी छोटी चीजें देखना चाहिए बच्चों। एक और है शेवरोले, उच्चारण है शेवरोले लेकिन स्पेलिंग में टी आता है। मैं फॉक्स वैगन चलाना पसंद करूंगा। What would you love to ride? Right. What would you love to drive? I would love to drive BMW. VW बोलते हैं उसको, फोक्स वैगन शॉर्ट में VW। आप क्या चलाना पसंद करेंगे? मैं BMW चलाना पसंद करूंगी। What would you love to drive? I would love to drive car. आप क्या चलाना पसंद करेंगी? तो कार चलाना पसंद करेंगी। What would you love to drive? I would love to drive. Sorry. आप क्या चलाना पसंद करेंगी? BMW चलाना पसंद करेंगी। What would you love to drive? I would love to drive ship. आप क्या चलाना पसंद करेंगी? मैं ship चलाना पसंद करूंगी। What would you love to drive? I would love to drive Mini Cooper. आप क्या चलाना पसंद करेंगे? मैं Mini Cooper चलाना पसंद अपने यहाँ एक मिनी कूपर हमने देखी सैम में, दो है सर। दो है, बहुत प्यारी गाड़ी लगी। एक येलो के पास है ना येलो जो है अच्छा, यहाँ था क्योंकि मैं देखी हूँ। हो सकती है। What would you love to drive? I would love to drive Creta. आप क्या चलाना पसंद करेंगी? मैं Creta में चलाऊंगी। रहता Creta चलाऊंगी। What would you love to drive? Now I would love to drive electric vehicle. आप क्या चलाऊंगी? अब मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना पसंद करूंगा because it टेस्ला आ रही does not pollute the environment. टाटा की भी आ रही हाँ, Hyundai भी नहीं आ रही। so should we conclude the class? Yes, Thank you बच्चों, and tomorrow please come with peace.